ناول سفرِ خاک رائٹر رشک فلک قسط نمبر 5 یہ ہمارا گھر ہے۔ ضلع نے حیرانی سے معاذ کو دیکھا۔ ہاں پچھلے سال امی نے نیا بنوایا ہے، معاذ مسکراتے ہوئے بولا۔ پیسے کہاں سے آئے؟ ضلع پھر سے حیرانی سے بولی۔ بس آ گئے، چلو گھر چلے، معاذ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ارے بتاؤ نا، ضلع گاڑی سے نکلتے ہوئے بولی۔ ارے یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو 3 سال پہلے بیمار ہوئی تھی۔ اللہ اللہ دیکھو کیسے منہ اٹھا کر آ گئی، محلے کی عورتیں جمع ہونی شروع ہو گئی۔ ارے ہاں لگتی تو وہی ہے، کیا پتا ساتھ کوئی بچہ بھی ہو، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے دیکھو تو، دوسری عورت بولی، جبکہ ضلع تو ان کی باتیں سنتی حیرانی سے کبھی معاذ کو دکھتی تو کبھی عورتوں کو۔ ارے کیا پتا وہی مادیہ ہو، آج کل کیا پتا کل جاتی تھی، اس کا باپ تو پہلے ہی کہتا تھا۔ تیسری عورت بولی۔ ہاں بھائی توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، پتا نہیں کس منہ سے واپس آئی ہیں۔ اس کے ساتھ کی عورت بولی۔ یہ سب کیا ہے؟ ضلع حیرانی اور دکھ سے بولی۔ آپ پریشان نہ ہو اپی، یہ سب کچھ نہیں جانتے نا، اس لیے ایسے بات کر رہی ہیں۔ معاذ ضلع کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ہائے اللہ کیسا بھائی ہے میرا بیٹا، ایسا کرتے تو قتل کر دیتی۔ سامنے والی گھر کی عورت آتے ہوئے بولی۔ اور کیا بہن، ہمارے بھائی اور شوہر تو زندہ دفنا دیتے، ان میں دیکھو غیرت ہی نہیں ہے۔ محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر ضلع کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آج اسے احساس ہوا اسے واقعی ہی مر جانا چاہیے، نہیں تو کومے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج اسے لگا، وہ واقعی ہی لگا کہ وہ منحوس ہے اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے۔ اس کا خاندان اتنا بڑا تھا، چچا تھے، پھپھو تھی، خالی تھی، ماموں تھے، لیکن آج اس میدان میں اس کے ساتھ صرف اس کا بھائی تھا۔ آج ضلع کو محسوس ہوا آستین میں سانپ پالنا کسے کہتے ہیں، وہ سب سانپ ہی تھے جو گرے تھے آستین سے۔ نم آنکھوں سے ضلع نے اپنے سے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو لڑ رہا تھا اس کے لیے۔ وہ کہتا تھا بھائی قربان، وہ کر کے دکھا رہا تھا۔ آپ سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ سب تہمتیں لگا رہے ہیں۔ معاذ ان سب کو دیکھ کر بولا۔ ارے کون سی تہمت؟ جس کا باپ سریعام کہتا ہو ان کی گواہی کون دیتا ہے؟ اور جہاں معاذ کا حوصلہ ٹوٹا اسے سمجھ آیا لوگ کیوں کہتے ہیں اپنے ہی برباد کرتے ہیں، غیروں کو کہاں پتا ہوتا ہے کہ تکلیف سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑتی ہوں اپنے باپ کا معاملہ بھی اور آپ کا بھی۔ ضلع نم آنکھوں سے بولتے اندر کی طرف بڑھی۔ ارے ضلع آئی ہے۔ جنت ضلع کو دروازے کو دیکھ کر جلدی سے ضلع کے پاس آئی۔ کیسی ہے تو؟ جنت ضلع کا ماتھا اپنی دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ اور آج ضلع کو لگا بھائی کے بعد ماں تھی جو سچی محبت کرتی، جو شوہر سے بھی جوتے کھا رہی تھی اولاد کے لیے اور دنیا سے بھی اولاد کا سن کر بھی اولاد کا ماتھا چوم رہی تھی۔ یہی ضلع کا ضرور ٹوٹا اور جنت کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ رو دی۔ ماما آپ کیسی ہیں؟ ضلع نم لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک میرا بچہ، جنت محبت سے ضلع کے آنسو پونچھ کر بولی۔ کھانا کھایا میرے بچے نے؟ جنت ضلع کی طرف دیکھ کر بولی۔ جی ماما، ضلع نے اس بات میں سا ہلایا۔ آج میں بریانی بناؤں گی، میرے ضلع کو پسند ہے نا؟ جنت جلدی سے میز کو گوشت کے پیسے دیتے ہوئے بولی۔ جی ماما۔ ضلع تو بس ان کا محبت سے بڑا انداز دیکھ رہی تھی۔ ان کی نفسیات ضلع کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ جب تک ارباز پاس ہوتا وہ چڑی ہی رہتی تھی۔ چاچو کہاں ہیں؟ ماں کا موڈ اچھا دیکھ کر آخر ضلع نے پوچھ ہی لیا۔ اپنے سسرال گیا ہے، امی یاد کر رہی تھی۔ جنت سنجیدگی سے بولی۔ اچھا اپی آپ آرام کر لیں، آجائے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ معاذ محبت سے ضلع کی بازو میں بازو ڈال کر اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ معاذ تم نے 2.5 سال کیسے ان لوگوں میں گزارا؟ ضلع نم آنکھوں سے بولی۔ آپی برا وقت نہ تھا، گزر گیا۔ معاذ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ تم کیسے سمجھدار نہ ہوتے، تم نے تو زمانہ دیکھ لیا۔ معاذ یہ کہتے ہی ضلع کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ آپی رویا نہ کرے، دعا کیا کرے۔ معاذ محبت سے ضلع کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آج مجھے امی کا دکھ سمجھ آ گیا معاذ، آج مجھے پتہ چل گیا وہ کیوں کہتی تھی مجھے موت آ جائے۔ وہ آنے والے حالات سے واقف تھی، مائیں سب جانتی ہوتی ہیں، معاذ وہ بھی جان گئی تھی۔ ضلع یہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ رو دی۔ آپ یہ ایسی باتیں نہ کیا کرے، معاذ اداسی سے بولا۔ معاذ دیکھو نا، میں پہلے کتنا ہنستی تھی، امی ڈانٹتی تھی نہ ہنسا کر ضلع، اور جب امی موت کا کہتی رہی میں دونوں کو نہ سمجھ سکی کہ وہ کتنی نافرمان اولاد ہوں میں۔ ضلع اداسی سے بولی۔ آپی موت پہ کسی کا اختیار نہیں، اس لیے خود کو قصوروار ٹھہرانے سراسر زیادتی ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ معاذ ضلع کے ہاتھ تھام کر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ دیکھ لو میں اپنے معاملہ میں بھی ظالم ہی ہوں۔ ضلع بے بسی سے مسکرائی۔ آپی آپ کو کون ایسی بات پریشان کر رہی تھی کہ 3 سال پہلے آپ کی یہ حالت تھی؟ معاذ نے آخر سالوں سے چھپا راز پوچھ ہی لیا۔ جنت جو دروازے پہ ضلع کو بلانے آئی تھی سوال سنتے ہی رکی، شاید وہ بھی جواب جاننا چاہتی تھی۔ معاذ کبھی محبت نہ کرنا، یہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ محبت دور سے خوبصورت احساس لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسان ترین کام ہو، لیکن جب ہو جاتی ہے تو یہ اس روزے کی طرح ہے جس میں انسان سارا دن کام کرتا ہے، جب روزے کھلنے کا وقت آئے اور آپ کے پاس روزہ کھولنے کو کچھ موجود نہ ہو اور اس وقت بے بسی کی کیفیت جانتے ہو، میں نے محسوس کی ہے۔ ضلع نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ضلع کو بولتے دیکھ کر معاذ نے خود کو سننے کے لیے تیار کر لیا۔ آج تک وہ بہن کی خاموشی سنتے آیا تھا، جو اب اس کی خاموشی کو الفاظ مل رہے تھے۔ محبت ہونے اور اس پہ قائم رہنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ انسان کر لیتا ہے لیکن قائم نہیں رہ سکتا، کسی ایک کا ہو کر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان کو ملک سے نکال دیا جائے اور دوسرے ملک بھیج کر پاسپورٹ رکھ لیا جائے تو تم اس انسان کی طرح محبت کر سکتے ہو؟ اپنوں کے لیے، وطن کے لیے نہیں نا؟ بالکل ایسی طرف ہوتی ہے۔ ایک کا
رہنے میں ضلع سانس لینے کو رکی اور پھر ماس کے تاثرات کو جاننے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، مجھے بہت اذیت دی تھی ذہنی۔ اور یہ بات سنتے ہی جنت کا ہاتھ اس کے منہ تک گیا۔ ان کی بیٹی کو کیا روگ لگ گیا تھا؟ باہر سے کسی کی آواز کو محسوس کر کے جنت ضلع کو بلائے بغیر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آپی کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون تھا؟ ماس چہرہ جھکاتے ہوئے بولا۔ ماس میں نہیں چاہتی تم مجھ سے نفرت کرو۔ ضلع بے بسی سے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ آپی قسم کھاتا ہوں، اور میں کیسے اس انسان سے نفرت کر سکتا ہوں جس سے میری آپی کو اتنی محبت ہے؟ ماس نم آنکھوں سے بولا۔ ماس تم نے غیرت میں آ کر میرا قتل نہیں کیا، تم نے برا نہیں منایا، کوئی اور ہوتا مجھے یہیں دفن کر دیتا۔ تم کیسے بھائی ہو؟ ضلع نے آخر دل میں آیا سوال پوچھ ہی لیا۔ آپی قتل وہ کرتے ہوں گے جن کے پاس زیادہ بہنیں ہوتی ہیں اور جن کو بہن سے زیادہ عزت سے پیار ہوتا ہے، لیکن میری ایک ہی بہن ہے جو مجھے عزیز ہے، اور عزت کا کیا ہے؟ ہم اس جگہ سے کسی اور چلے جائیں گے، دوبارہ مل جائے گی بہن، دوبارہ نہیں آتی۔ اس کے بعد پتہ نہیں جنت میں ملاقات ہو کہ نہ۔ ماس کی بات سن کر ضلع پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمارا واسطہ اس معاشرے سے ہے جہاں ہم زندہ لوگوں کو رلاتے ہیں اور مردہ لوگوں پر روتے ہیں، یہی ہماری غلطی ہے۔ اس سے اچھا یہ نہیں ہم انسان کے غم پہ رو لیں، اس کی قبر پہ رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ماس سمجھداری سے بولا۔ ماس تم مجھے خود سے کہیں زیادہ بڑے محسوس ہو رہی ہو۔ ضلع ماس کا ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ آپی اس کا نام بتائیں۔ ماس ضلع کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ علی، ضلع نے کہتے ہی چہرہ جھکا لیا۔ پپھو کا؟ ماس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ضلع کا سر اسبات میں ہل گیا۔ آپی پریشان نہیں ہونا، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا بھائی قربان آپ پہ۔ ضلع کو لگا ماتھا چوم کر بولا۔ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، پریشانی کیسی؟ ضلع مسکراتے ہوئے بولی۔ چلے رام کرے میں بھی چلتا ہوں۔ ماس ضلع کو رام کا کہنے کا خود چھت پہ چلا گیا تھا۔ جنت نے ماس کو چھت پہ ٹہلتا دیکھا تو خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی، شاید وہ اس کے دل کی حالت سے واقف تھی۔ ارے آج تو ہماری بیٹی آئی ہوئی ہے، ضلع کو دیکھ کر ارباز مسکراتے ہوئے بولے۔ جی چاچو۔ ضلع بھی مسکراتے ہوئے ان سے ملی۔ خیر کیسی ہو ضلع؟ ارباز ضلع سے بولے۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ ضلع نے بھی ہمت کر ہی لی۔ میں بھی ٹھیک، ارباز بولتے ہوئے چپ ہوئے۔ ماموں گھر سب ٹھیک تھے؟ ضلع وہاں کے حالات کا پوچھتے ہوئے بولی۔ ہاں سب ٹھیک تھی، سب خیر تھی، ارباز لاپرواہی سے بولے۔ ضلع یہ کہتے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنے آنسو اپنوں کے سامنے چھپانے جنہوں نے آپ کی عزت کو خراب کیا ہو۔ میں سوچ رہی ہوں ہماری ضلع ٹھیک ہو گئی ہے، ماشاءاللہ، ہم سے خیرات کریں۔ جنت ضلع کو دیکھ کر بولی۔ ہاں پرسوں جمعہ بنوا لیتے ہیں، دیکھیں میاز بھی جنت کی بات پہ حامی بھرتے ہوئے بولا۔ چلو صحیح ہے، ماس سب سے بات کروانا میری، میں سب کو کہہ دو۔ جنت سبزی بناتے ہوئے بولی۔ جی امی۔ ماس فرما برداری سے بولا۔ امی رہنے دے، آپ کو کیا شوق چڑھا ہے بےعزتی کروانے کا؟ معز گیم کھیلتے ہوئے بولا۔ یہ کیا طریقہ ہے معز بات کرنے کا؟ ماس معز کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں تو کیا غلط کہا؟ پہلے لوگ وہ ہماری بہت تعریف کرتے ہیں، جیسے اب رشتہ داروں کو بھی بلا لو، ایسے ہی ان کی باتیں سنو، میری ماننے تو رہنے دے۔ اور ویسے جتنی ہماری عزت ہے ہمیں پتہ ہے۔ معز اپنی بات کے آخر میں ضلع کو دیکھ کر طنزیہ مسکرایا اور ضلع کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ یہ اس کے اپنے تھے، بکواس نہ کرو، اور ویسے بھی خیرات اللہ کے نام پہ کرنی ہے، تم اپنا منہ بند رکھا کرو۔ ماس ضلع کو نم آنکھوں سے جاتا دیکھ کر غصے سے بولا، جبکہ جنت نے دونوں کو افسوس سے دیکھا۔ امی آپ نے کچھ بولا کیوں نہیں معز کو؟ آخر کب تک آپ اپنی اولاد کے حق میں بولنا سیکھیں گی؟ ماس غصے سے بول کر باہر نکل گیا۔ ماس کیا ٹائم ہوا ہے؟ جنت اپنی نیند سے جاگتے ہوئے بولی۔ امی 12 بج رہی ہیں۔ ماس کتاب سے سر اٹھا کر بولا۔ بیٹا جلدی سو جانا، ابو آ گئے کیا؟ جنت فکر مندی سے بولی۔ نہیں امی ابھی نہیں آئے۔ ماس ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا ہوگا نشیوں کے ساتھ ہزار بار کہا وقت گھر سے آیا کرے، لیکن حیرت ہے کبھی اثر ہو جائے۔ جنت بڑبڑاتے ہوئے نیند میں چلی گئی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ چھت سے عمران کی آواز آئی۔ بھابی ماس کوئی ہے؟ اللہ خیر کرے، چاچو بلا رہی ہیں۔ ماس جلدی سے صحن کی طرف بھاگا۔ ضلع بھی نیند سے جاگ گئی۔ کیا ہوا چاچو؟ ماس پریشانی سے بولا۔ ارباز نشے میں کہیں گرا پڑا تھا، میرے ملازموں نے دیکھا تو مجھے فون کر دیا، میں نے کہا گھر لے آؤ تو آتے ہوں گے، دروازہ کھول کر اندر بلا لو۔ عمران کہتے ہی اپنے گھر کی طرف بڑھا، جبکہ ماس شرمندہ ہوا اور پریشان دونوں ہوا۔ یہ سب کیا ہے ماس؟ ضلع پریشانی سے بولے۔ آپ ہی پریشان نہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے، ابھی بندے آئے گے چھوڑ گئیں گے، اب کچھ دیر کے لیے اندر چلی جائے۔ ماس دکھ اور غصے سے بولا۔ ماس کا انداز دیکھ کر ضلع اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ بجا ماس تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی ارباز کو انتہائی مدہوشی کے عالم میں پایا۔ آخر 2 بندے اندر آئے اور ارباز کو چارپائی پہ لٹایا، اور جیسے ہی مڑے ارباز نے پھر اٹھنے کی کوشش کی اور زور سے گرا۔ بھائی 2 بندوں میں سے ایک بولا، چھوڑ دو میں اٹھا لوں گا۔ ماس ناگواری سے بولا۔ دونوں باہر نکل گئے۔ ماس دروازہ لگاتے ہی ارباز کی طرف بڑھا۔ آپ اتنے پیتے ہی کیوں ہیں جب سنبھالی نہیں جاتی؟ ماس ارباز کو اٹھاتے ہوئے افسوس سے بولا۔ چھوڑو مجھے، میں اس سے بتاتا ہوں۔ خود کو چھڑواتے ہوئے ماس مدہوشی میں بولا۔ بس کر دے، کھڑا ہوا نہیں جا رہا۔ ماس اسے اس طرح سے پھر پھراتے دیکھ کر غصے سے بولا۔ چھٹ چھوڑو مجھے، میں کہہ رہا ہوں نا۔ ارباز ماس کو دھکیلتے ہوئے بولا۔ چپ کر کے بیٹھ جائے، اپنا تو کو پتہ نہیں ہے۔ ماس اسے جھٹکتے ہوئے بولا۔ بس بہت ہوا، آپ ہی لائیں رسی۔ ماس ارباز کو پھر پھراتے دیکھ کر بولا۔ ماس یہ کیا کر رہی ہو؟ ضلع پریشانی سے بولی۔ آپ ہی بہت ہوا، اس کا حل چاہیے، انہیں باندھ کے رکھا جائے۔ ماس غصے سے ارباز کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر تھک کر خود دوسری چارپائی پر گر گیا۔
ये लो मास पानी। जिले मास को पानी देते हुए बोली। आगे अपनी बहन को लेकर अरबाज जिले की आवाज़ सुनते ही बोला, आप ही आप अंदर जाएं। मास जिले को देखते हुए बोला, अरे जाओ, क्या पता अंदर कोई तुम्हारे लिए बैठा हो। अरबाज तंज बोला, बाबा। मास रख चेहरा लिए बोला, मास चलो। जिले पहले तो डरी और फिर मास को देखते हुए बोली, आप ही जाएं आप। मास रख चेहरे पे हाथ मारते हुए बोला, जाओ जाओ। जिले को अंदर जाते देखकर अरबाज बोला, जबकि मास ने अफसोस और गुस्से से उसे देखा। आप ही, मुझे लगता है आपको कॉलेज जाना चाहिए। मास घर की सूरत हाल को देखकर बोला, मास मैं कैसे। जिले हिचकिचाते हुए बोली, आप ही, आपको नहीं लगता आपको कामयाब होना चाहिए। मास जिले को देखते हुए बोला, मास ख्वाब बहुत है, फिर मार दिए मैंने। जिले आसमान को देखकर बोली, मारने से किसे फर्क पड़ा। आप ही अब खुद बताएं। मास भी आसमान की तरफ देखकर बोला, मेरा दिल मार गया उससे बस। जिले आंखों की नमी छुपाते हुए बोली, आप। मास कुछ कहते हुए रुका। मास ऐसा नहीं है, लड़के ख्वाब तब देखती हैं जब को साथ देने वाला हो। और यकीन जानो, मैंने जो ख्वाब देखा वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर उसे बयाना ख्वाब में बदलते देखा वो बहुत खौफनाक था, इतना कि मुझे मेरी रूह तक निकलती महसूस हुई। जिले बोलते हुए रुकी, आंखों के आंसू गाल पे बह गए। और तब मुझे समझ आया लड़की के लिए मर्द का साथ होना कितना ज़रूरी है। जो लड़कियां गैरों की मोहब्बत में भाग जाती हैं या ख्वाब देखती हैं, वो इसलिए कि उनके घर के मर्द अच्छे होते हैं। उन्हें दुनिया के मर्द अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनके घर मर्द अच्छे ना हो वो किसी मर्द पे यकीन नहीं करती, और अगर करती भी है तो वो मोहब्बत ढूंढती है जो वो महरम रिश्तों से चाहती थी, जो वो लाड वो चाहती थी। बाप दे वो यकीन, बाई दे इनमें कमी में महरूम रिश्तों की मोहब्बत की होती है। जिले मास को समझते ही उठ खड़ी हुई। अभी मैं आपका एडमिशन फॉर्म ले आया हूँ, आप कल मेरे साथ चलिएगा। मास कहते ही नीचे की तरफ बढ़ गया। मास मत लड़ो, तुम्हें ये दुनिया तबाह कर देगी। जिले नम आंखों से देखकर सरगोशी में बोली। जिले की ज़िंदगी में तब्दीली आ गई थी। अब वो कॉलेज जाने लगी थी, ज़िंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करने लगी थी। मास जल्दी करो, कॉलेज से देर हो जाएगी। जिला बुर्का पहनते हुए बोली, बस आप ही 2 मिनट प्लीज़। मास उठते हुए बोला, जल्दी मुंह धो लो, एक तो सेकंड टाइम कॉलेज है और ये जनाब सो रही हैं। जिले बड़बड़ाते हुए बोली, यार क्या फ़ायदा चाहने का जब कोई मज़े ही नहीं है। आयशा जिले को देख कर बोली, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, मज़े करने थोड़ी आते हैं, और वैसे भी मुझे अपने कॉलेज से मोहब्बत है। जिले चमकती आंखों से बोली, बस हर वक्त पढ़ाई करो और बुर्का पहन कर आओ। आशा मुंह बनाते हुए बोली, ये एक इस्लामी कॉलेज है और तुम्हें पता है सर बिल्कुल पसंद नहीं करते, और अच्छा है यार कोई बात भी नहीं बनेगी। जिले आशा को समझाते हुए बोली, बात तो वैसे भी नहीं बन सकती। आशा हंसते हुए बोली, जबकि उसकी बात सुनकर जिले को खुद के लिए जैसे दुख महसूस हुआ। हाँ, तुम पे बात नहीं बन सकती, लेकिन तुमने उस इंसान को नहीं देखा जो हर तरफ से हारा हो, रिश्ते से छुटकारा हुआ हो, जिसका कोई साथ देने वाला ना हो। तुम उसकी तकलीफ नहीं समझ सकती। जिले दिल ही दिल में बोली, यार तुम्हें मैं कभी नहीं समझ सकती, तुम बहुत अजीब हो। आयशा जिले की नम आंखें देखकर बोली, क्यों, क्या हुआ। जिले चांकते हुए बोली, तुम बैठे बैठे रोने लगती हो, इंसान का दिल इतना नरम नहीं होना चाहिए। आयशा जिले को समझाते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसने मुखलिसी की आखिरी हदों को छुआ, मगर फिर भी खाली हाथ रहा। मैं खुश ना सही, लेकिन फिर भी मुतमईन हूँ कि मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया है, मगर उसी रिश्ते ने मुझे मेरी रूह को अंदर से हमेशा तकलीफ और अजियत दी। जिले बड़बड़ाई और आंखों की नमी गाल पे बह गई। तुम या तो पागल हो या बंदी हो, पता नहीं कौन से दौरे पड़ते हैं तुम्हें। आयशा जिले को अजीब नजरों से देखती हुई क्लास की तरफ बढ़ गई। जब कोई शख्स आपके दिल से उतर जाए जो सालों आपके दिल में मकीन रहा हो, तो जब वो उतरता है तो आपके दिल में एक खला पैदा हो जाता है जिसे कोई नहीं बांट सकता। फिर हल्की सी चोट भी बहुत ज़ोर से लगती है और दिल किरचियों में बच जाता है। फिर जब उस पर चोट लगती है उसमें से खून रसता है। हमारा भी आजकल यही मसला है। हमसे बातें इसलिए बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि लोग हमारे दिल को अपने रवैयों से तोड़ चुके हैं, और तब सिर्फ हमारी आंखें ही बिकती हैं। जिले बड़बड़ाते हुए क्लास की तरफ बढ़ गई। जिले जो अभी कॉलेज से आई घर की तरफ बढ़ रही थी, सामने की आंटी की आवाज़ सुनकर रुकी। जी। जिले उन्हें दरवाजे में खड़ा देखकर उनकी तरफ बड़ी, बेटा कॉलेज से आई हो। आंटी एक्स्ट्रा कती नज़रों से देखते हुए बोली, जी आंटी। जिले इधर उधर देखते हुए बोले, बेटा मैंने जन्नत से बोला है तुम्हारी शादी कर दे, पढ़ाइयों में क्या रखा है। मैंने भी अपनी बेटी को ही 10 पढ़ा दी, तुम ये कॉलेज जाना छोड़ दो करना तो बेटियों को घर का काम ही होता है। आंटी फिक्र से बोली, तो आंटी आप सिखाएं सादिया को काम। जिले अब दो टोक बात करने का सोचते हुए बोली, आखिर कब तक मास उसके लिए लड़ता। बेटा मेरी बेटी तो अभी छोटी है। आंटी अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, तो मैं भी छोटी हूँ, आपको इतराज़ है, आप अपनी बेटी की शादी कर दे। जिले कहते ही घर की तरफ बढ़ गई। तोबा तोबा, कितनी ज़ुबान है इस लड़की की, ऐसी लड़कियाँ कहाँ घर बसाती हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आंटी कानों को हाथ लगाते अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि आंटी की आवाज़ जिले ने साफ सुनी थी। 2 साल मैंने खूब मेहनत से बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की थी, लेकिन उसे जो जॉब चाहिए थी वो उससे घर जाना चाहती थी, उस अजियत से निकलना चाहती थी। आप ही, आपका इंटरव्यू कैसा रहा। माँ जिले को पानी देते हुए बोला, बस सही था। जिले वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हुए बोले, मतलब अच्छा नहीं था। माँ जिले के तासरात से अंदाज़ा लगाते हुए बोला, हाँ यार इतने अजीब लोग थे ना, बस क्या कहूँ। जिले सर झटकते हुए बोली, आप चलिए आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। माँ जिले को तसल्ली देते हुए बोला,
इंशाल्लाह, ज़िले कहते ही अंदर की तरफ बढ़ गई। ज़िले रात का खाना खा लिया। जन्नत ज़िले से पैसे बेटे देकर बोली, जी ज़िले बस इतना ही बोलती खामोश हो गई। अगर नहीं खाया खा लेना, अपने चचा का पता है ना, अभी आ जाएगा। जन्नत उसकी खामोशी को नज़रअंदाज करते हुए बोली। जी ज़िले ज़मीन पे नज़रें टिकाते हुए बोली, क्या उसे मेरी याद आती होगी? ज़िले आसमान को देखकर बोली, नहीं उसे क्यों मेरी याद आएगी? वो अपनी बीवी के साथ खुश होगा, उसके बच्चे भी होंगे, उनका नाम उसकी बीवी ने रखे होंगे। ज़िले नम आंखों से सोचते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। हर चीज़ एक तरफ, लेकिन हर रात ज़िले पे उत्साह बारी हुआ करती थी। वो बुरी नहीं थी, लेकिन उसे खुद का वजूद हर कहानी में अब जालिम महसूस होता था। ना अच्छी बेटी थी, ना बहन, ना भतीजी, ना दोस्त, ना मोहब्बत। हर रिश्ता बेजार था उससे। बहुत सी जगह पे इंटरव्यू देने के बाद आखिर ज़िले को जॉब मिल ही गई थी। ज़िले जॉब के लिए फैसलाबाद चली गई थी। बातें करने वाले आप भी करते थे। आज भी आम के दिन जैसा दिन था। जना सब्जी बनाने मगन थी कि बाहर का दरवाज़ा बजाया। बाहर के बजते दरवाजे को देखा, जल्दी से उठी और वहीं से चलाई, आ रही हूँ, अब क्या उड़कर पहुंच जाऊँ? जन्नत झुंझलाते हुए बोली, आ रही हूँ। तेजी से कदम उठाते वो दरवाजे तक पहुंची। रुक जा मोइस, खोल रही हूँ। दरवाज़ा खोलकर अभी जो अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि साकत हो गई तुम। जन्नत उसे देखते ही हैरानी और सदमे से बोली, अस्सलाम वालेकुम मामी। अली सर को उनके सामने झुकाते हुए बोला, वालेकुम सलाम बेटा। जन्नत जल्दी से खुद के तासरात को नॉर्मल करते हुए बोली, कैसी हैं आप? अली उनके पीछे आगे बढ़ते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? जन्नत मोहब्बत से बोली, मैं भी ठीक। ये कहते ही उसने चारों तरफ नजर घुमाई। ये वो घर नहीं था जो वो छोड़कर गया था। ये ना वो चेहरे थे। जन्नत के चेहरे पे बहुत सी जड़ियाँ थीं। रंग भी थोड़ा सांवला हो गया था और वो इस उम्र में इंतहाई बुजुर्ग हो गई थी। उनके चेहरे से वीरानियां टपक रही थी। न जाने उन्हें बीमारियों ने ऐसा कर दिया था या गमों ने। अली समझ ना सका। बेटा क्या लाओगे? जन्नत मोहब्बत से उसकी तरफ देख कर बोले, मामी। अली उनकी मोहब्बत देखकर शर्मिंदा हुआ। बस मैं खाना बना रही हूँ, तुम भी खाना। तुम्हें याद है ना ज़िले को कितनी पसंद थी? जन्नत आंखों से आंसू साफ करके बोली, जबकि अली समझ ना सका उसके आंसू की वजह, जो शायद अपनी बेटी को रुखसत करके दुखी थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल जोर से धड़का। जी मामी। अली ना समझी से बोला, अरे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ। जन्नत उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए बोले, जी मामी। अली इधर उधर देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ा, न जाने किसकी तलाश में था। अरे वहाँ अली बेटा आया है। अरबाज अली से मोहब्बत से गले मिलते हुए बोला, जबकि मामू को ऐसे देखकर अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जी मामू। अली मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ थे बेटा? बता है हम कितना याद करते थे। अरबाज अली के चेहरे पे मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बोला, जी मामू। बस। उनकी मोहब्बत देखकर अली की आंखें तेजी से नम हुई। अरे मेरा बेटा देखो, तुम्हारे भाई मुआज और मुइज़ हैं। अरबाज मुइज़ और मुआज से मिलाते हुए बोला, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। अली उन्हें देखकर खुश होते हुए बोला, जी भाई आप ही गायब रहते हैं। माज अली के गले मिलते हुए बोला, बस बच्चे। अली उसकी तरफ देखकर बोला, जी भाई आए, हम बाहर घूम के आते हैं। मुइज़ खुशी से बोला, अरे बेटा उसे आराम तो कर लेने दो। अरबाज मुइज़ को पास बिठाते हुए बोला, सॉरी भाई। मुइज़ अली को देखते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं बच्चे, हम चलते हैं। अली मुइज़ का दिल रखते हुए बोला। अरे भाई को नहीं आना चाहिए था। मास परेशानी से इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बोला, क्यों भाई? मुझे ज़िले की बड़बड़ाहट सुनते हुए बोला, तुम चुप कर जाओ और जाओ जहाँ से। मास परेशानी से बोला, भाई आपको भाई से क्या मसला है? आखिर मुझे ज़िद्दी अंदाज में बोला, मुझे जो भी मसला है तुम्हें उससे क्या मसला है बताओ ना। मास गुस्से से बोला, भाई काटने को क्यों दौड़ रही है? मुझे नाराज़गी से बोला, तो बात ना करो मास, अब के चलाया पागल हो गए हैं, जा रहा हूँ मैं। मुझे कहते ही नीचे की तरफ बढ़ गया। इतनी मुश्किल से आप ही संभली थी, इसे नहीं आना चाहिए था। मास अब चाहता था कि किसी भी तरह ज़िले का अली को पता ना चले। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मास सोचते हुए बोला। काफ़ी देर सोचने के बाद एक ख्याल के साथ उठा और मास नीचे की तरफ बढ़ गया। कितना बदल चुका है ये शहर? अली मास की तरफ देखकर बोला, शहर नहीं बदला, आप बदल गए हैं जनाब। मास आइसक्रीम खाते हुए बोला, नहीं अब ऐसा भी नहीं है, शहर भी बहुत बदल चुका है। अली अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोला, हाँ वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। इंसान के हालात, ज़िंदगी, रिश्ते, दोस्तियाँ, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। यही ज़िंदगी है और कुदरत का सिलसिला है। मास आसमान की तरफ देखकर उदासी से बोला, हाँ ये तो तुमने सही कहा, वक्त वाकई ही कभी एक सा नहीं रहता। अली भी उसके ताकुब में देखकर बोला, लोग बदल जाते हैं एक इंसान के लिए। वो अपने आसपास न जाने कितने लोगों की मोहब्बत को भूल जाते हैं। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। मास जैसे माजी में गुम होते बोला, अरे तुम इतने छोटे हो, इतनी दुखी बातें तुमने कभी ज़िले को नहीं देखा था? वो तो बहुत शरारती। अली तेजी से बोलते हुए रुका और पलट कर मास की तरफ देखा, शायद उसके चेहरे पे कोई तासर हो या वो खुद उसके बारे में बात करे, लेकिन नहीं, वो अभी आसमान की तरफ ही देख रहा था। लोग बदल जाते हैं एक इंसान के लिए, वो अपने आसपास। बाई कार चलते हैं, शाम हो गई है। मास कहते ही तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि उसे मास का रवैया अजीब लगा और उसकी आवाज़ भीगी सी महसूस हुई। लेकिन फिर उसने अपना वहम समझकर सर को झटक दिया और उसके पीछे चल दिया। भाई आपने इतना टाइम लगा दिया पाकिस्तान आजने में? मास ने आखिर दिल में आया हुआ सवाल पूछ ही लिया।
बस हिम्मत ही नहीं हुई। अली आसमान के सितारों में न जाने क्या ढूंढते हुए बोला, क्यों? मास अली की तरफ देखकर बोला, जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है। वो गलतियां आपका चैन, सुकून, नींद, हर चीज़ छीन लेती हैं। अली नम आंखों से आसमान को देखकर बोला, भाई ऐसी भी क्या गलतियां? माँ जीरे से पूछ ना सका था, लेकिन अली से पूछ सकता था। इतने साल आखिर कैसे गुजरे? बस जवानी के दिन, जज्बे, जोश बहुत कुछ इंसान से करवा लेता है। अली अब के मास को देखकर बोला, और उनकी बात सुनकर मास का दिल जोर से धड़का। क्या उसकी बहन थी? से शख्स का गम भी बर्दाश्त किया था। भाई आपने मोहब्बत में बेवफाई की। मास के मुंह से बेइख्तियार निकला। तो तुम्हें कैसे पता चला? अली के कहने की देर थी। मास ने आंखें मची। मैं गेस किया था। मास तकलीफ से मुस्कुराया। हाँ, मुझसे गलती हुई थी। मैं जज्बात में बह गया था। मैं भूल गया था अपनी रवायत। अली की आंखों की नमी अब के गाल पे बही। भाई आपकी कुछ गलतियां किसी की ज़िंदगी तबाह कर देती हैं, किसी के ख्वाब मार देती हैं, किसी के अरमान जज्बात मार देती हैं, आपकी गलती को गुनाह में तब्दील कर देती हैं। माज इंतहाई दुख से पिछले सालों के बारे में सोचते हुए बोला, सही कह रही हो, मेरी अपनी गलतियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अली अब भी खुद के बारे में सोचते हुए बोला, जबकि उसकी बात सुनकर माज ने गुस्से से अली को देखा। आप इन तकलीफ़ों के लायक थे, ये कहते ही निकल गया। ज़िले आपका काम बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन आप टीम के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। कंपनी के मैनेजर ने ज़िले को देखते हुए कहा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनसे कोऑपरेट करूं, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करते। ज़िले मैनेजर को यकीन दिलाते हुए बोली, देखिए आप उनसे अपना ताल्लुक अच्छा करें, वो सब आपकी जैसी ही हैं। मैनेजर कहते ही आगे बढ़ गई, पता कब ज़िंदगी में सुकून आएगा, न जाने में मनहूस हूँ या किस्मत ही साथ नहीं देना चाहती। ज़िले बुड़बड़ाई, तुम्हें वाकई ही लगता है हम तुम्हें जहाँ काम करने देंगे? मिन्हा जो कि टीम लीडर थी ज़िले के पास आकर बोली, मुझे अपने काम से मतलब है, आपसे नहीं। ज़िले उन्हें नज़रअंदाज करते हुए बोली, देखो हम 5 साल से सब हम किसी अपने ग्रुप में कम ही आने देते हैं, और तुम जैसी साइको को तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। नूर अब के बोली, मुझे तुम्हारे ग्रुप में शामिल होने का कोई शौक नहीं है, आप अपना काम करें, मुझे अपना करने दे। ज़िले उनको देखते हुए बोले, देखो हम सबको एक साथ ही काम करना है, बेहतर है कोई और टीम देखो। सबीन कहते ही ग्रुप को लिए आगे बढ़ गई। या अल्लाह मदद कर, तेरी बंदी थक गई है। ज़िले ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा। मामा कोई आया है क्या? ज़िले कॉलेज से आते ही बैग रखते हुए बोली। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने, बालों की ऊंची पोनी किए जो कमर पर लहरा रही थी, और सफ़ेद ही जोकर पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी और कुछ थकी सी भी। हाँ बेटा, अली आया है, लेकिन पहले तुम कपड़े बदल लो। जन्नत गोश्त को भूनते हुए बोली, क्या अली आया है? ज़िले खुशी से चहकी। हाँ बताया तो है। जन्नत अपना ध्यान हांडी पे रखते हुए बोली, कहाँ है वो? अब की ज़िले ने तेज़ी से पूछा, साथ वाले कमरे में है, लेकिन पहले तुम कपड़े तो बदल लो। अभी वो कह रही थी कि ज़िले अली तक पहुँच चुकी थी। एक तो ये लड़की बिना। जन्नत सर झटकते हुए बोली, अली इतने दिनों बाद आए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? ज़िले नाराज़गी से बोली, आती थी। अली उसकी तरफ देखकर बोला, तुम तो इतने दिनों बाद क्यों आए हो? आंखों को टमटमाते हुए मासूमियत से बोली, बस काम में कुछ मसरूफ था। अली उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारे तो काम ही खत्म नहीं होते, तुम्हें वज़ीर आज़म ने कहीं अपना मैनेजर तो नहीं रख लिया? ज़िले इतनी मासूमियत से बोली कि अली हंस भी ना सका। अली तुम्हें इतनी देर से नहीं आना चाहिए था। अचानक ज़िले आंखों में नमी लिए पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, सॉरी ना। अली उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प कर आगे बढ़ा। अभी वो बढ़ ही रहा था कि एक जोरदार आवाज़ आई और वो साकत हो गया। ज़िले अचानक उसके मुंह से आवाज़ निकली, और वो ऐसी थी कि उसके खुद के कानों तक भी नहीं पहुंच सकी थी। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। वो मलबे के खून से लथपथ थी। न जाने कैसे उस पर छत गिरी थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उस पे थी जिनसे कई आंसू गिरकर बेमोल हो चुके थे। सर से बहता खून अब उसकी पलकों पे जमा होना शुरू हो चुका था। उसके पास पहुंचते ही वो तेजी से मलबा हटाने लगा। यकीनन वो जिंदा न रही थी। उसे ऐसे देखकर वो चिल्लाया था, अरे देखो अली उठा है या नहीं? अरबाज बाहर से आते हुए बोले, बाबा मैं देखता हूँ। मैं इस कहते ही अंदर की तरफ बढ़ा। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अली को पसीने में शराबोर सर को इधर उधर मारते हुए बड़बड़ाते पाया। उसकी हालत देखकर वो तेजी से आगे बढ़ा और उसे पाया। अली भाई उसको उठते न देखकर आखिर उसे कंधे से हिलाया। उसके हिलाते ही अली चलाते हुए उठा। ज़िले अली की बात सुनकर मुएज़ ने उसकी तरफ गौर से देखा। न जाने वो क्या ख्वाब देख रहा था, लेकिन था ज़िले के मुतल्लक ही। अली भाई, मुएज़ आपके ऊंचा बोला। उसकी आवाज़ पे अली उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो समझ ना सका कि ऊंचा बोलकर वो अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करना चाहता था या वाकई उसने ज़िले का नाम नहीं सुना था। भैया आप ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? अली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, माना कि वो वाकया ही नहीं जानता था या उसके सामने ऐसे बन रहा था। खैर उसने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो अभी ख्वाब के ज़रिए असर था। न जाने उसे इतना बड़ा ख्वाब क्यों आया था। अली भाई बाबा आपको बुला रही हैं। मास की आवाज़ पे वो होश में आया और पहले उसकी तरफ देखा और फिर मुएज़ की तरफ, जिसकी आंखें उसे सुर्ख महसूस हुई। तुम लोग चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अली उन्हें बाहर का जाने का कहकर खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मुएज़, क्या तुम मुझे ज़िले के घर का पता बता सकते हो? अली परेशानी से बोला, घर कौन सा घर? मुएज़ लापरवाही से गेंद खेलते हुए बोला, ज़िले का, जहाँ उसकी शादी हुई है। आकर अली ने दरख्त दिल से पूछ ही लिया, शादी, और वो भी ज़िले की? भाई आपको क्या कोई नशा हुआ है? मुएज़ अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, क्या मतलब? अली ना समझी से बोला, आपको किसने कहा ज़िले मैडम की शादी हो गई है? मुएज़ फ़ोन बंद करते हुए बोला,
अगर वो घर में नहीं है तो ज़ाहिर है उसकी शादी होगी। अली सोचते हुए बोला, हाँ हाँ ज़िले। अभी मुएज़ बोलने ही लगा था कि माज ने उसे आकर बाबा को बताया, मुएज़ बाबा बुला रही हैं तुम्हें, जबकि माज के माथे पे साफ पसीना नजर आ रहा था, यानी वो यहाँ हुई बात से वाकफ था। जी भाई, मुएज़ कहते ही बाहर निकल गया। भाई कैसा गुजरा आपका दिन? माज जो भी काली से आया था अली की तरफ देख कर बोला, बस अच्छा गुजरा, तुम सुनाओ। मैं ठीक। अली माज को देखते हुए बोला, चले आ जाए, अम्मी ने खाना लगा दिया है। माज कहते ही बाहर चला गया। माजले, आपके पास आखिरी मौका है, आप सही से काम करें, मैनेजर ज़िले को वार्न करते हुए बोली। मैं सही काम करती हूँ, ज़िले ने बेबसी से बोली। आज प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी थी आप जानती ना थी। मैनेजर गुस्से से बोली। जी मैम, ज़िले सर झुका कर बोली। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी था। जी मैम। देखिए लास्ट चांस है आपके पास, जो मर्जी करे आप, मुझे पूरा काम चाहिए। मैनेजर ज़िले को वार्न करती चली गई। अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं क्यों इतनी बेबस हूँ, अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर। ज़िले आंखों की नमी साफ करते काम में लग गई। अम्मी मुझे मुझे बात करनी है। मास ने मौका देखते ही जन्नत और मुझे से ज़िले की बात करनी चाहिए। हाँ बोलो, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है। जन्नत अपने गिले हाथ साफ करते हुए बोले, अम्मी अली भाई से ज़िले के बारे में कुछ भी पूछे आप दोनों ने बात बदल देनी है, नहीं तो कह देना आप ही इस दुनिया में नहीं रही। मास जल्दी से बोला, अल्लाह ना करे सब खैर है ना। जन्नत परेशानी से बोली, अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पहले आप ही का जिक्र बड़ा फ़ख्र हो, जो जाहिर है भाई को अपनी इज्जत प्यारी है। मुइज़ तंजन बोला, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मुआज़ मुइज़ की बात सुनते गुस्से से बोला, हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी कहानी सुनने का। मुइज़ गुस्से से कहते ही बाहर निकल गया। मास सब खैर है ना। जन्नत मास को देखते हुए बोली, अम्मी मैं जानता हूँ आप वही थी जब आप ही मुझे अस्पताल जाने से पहले आपकी कहानी सुना रही थी। मास नजरें झुकाकर बोला, जन्नत सोचते हुए बोली, अम्मी वो अली भाई ही थे। मास कहते ही बाहर निकल गया। पहले तो जन्नत को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उनका हाथ मुँहता गया, हाय अल्लाह मैं कितनी अपनी बेटी की तकलीफ को ना समझ सकी। जन्नत रोते हुए आसमान की तरफ देख कर बोली। मास मेज़ और अली छत पे बैठे ठंडी हवा में चाय पी रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा दिल को बहुत ही बाढ़ रही थी। मौसम में न सर्दी थी न गर्मी, दूर कहीं बारिश हुई थी। क्या तुम लोग सादे बस यही करते हो? अली चाय की घूंट लेते हुए बोला। हाँ तो अब यही करते हैं, रूटीन बन गई है। मास आसमान की तरफ देख कर बोला। अच्छा क्यों, पहले कुछ और रूटीन थी? अली भी आसमान की तरफ देख कर बोला। पहले तो हम सब साथ थे, मज़े करते थे, अम्मी को साथे थे और बहुत खेलते थे। पहली बात मुस्कुराते हुए, जबकि आखिर में उदासी से बोला, अब क्यों एंजॉय नहीं करते? अली पुरसोच नज़रों से उसकी तरफ देख कर बोला, सब तो ज़िले आप ही होती। मुझे सिर से कहते हुए रुका। अली ने उसके रुकने पे उसकी तरफ देखा। रुक क्यों गए? अली ने उसे देखकर पूछा। कुछ नहीं, मासा झटकते हुए बोला। हाँ आओ नीचे की तरफ बढ़ते हैं, हल्की सी भीगी आवाज़ में कहते मुझे नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बढ़ ना सका और फिर उसने मुड़कर पीछे देखा। तुम लोग क्यों उसकी बात नहीं करते, ऐसे क्यों करते हो? अली मुझे को बाजू से थाम कर बोला, बस वो हमें याद आती है। मुझे सुरख आंखें उठाते हुए बोला, अरे बहनें तो सबको याद आती हैं, और वैसे भी उसकी शादी ही तो हुई है, उससे मिल लाया करो, ऐसे थोड़ी करते हैं। अली मुइज़ के कंधे पे हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला, आपको किसने कहा उनकी शादी हो गई? मुइज़ ने मास की तरफ देखा जो खुद हैरानी से अली को देख रहा था, और फिर बोला, अरे तो उसने कहाँ जाना है? अली मोहब्बत से उसके कंधे पे बाजू फैलाते हुए बोला, आपको किसी ने कुछ नहीं बताया? मास दुख से उसकी तरफ देख कर बोला कि क्या नहीं बताया। अब के अली के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और फिर परेशानी झलकी यही कि अभी वो बोल ही रहा था कि जन्नत ऊपर आते हुए बोली, ज़िले दुनिया में नहीं रही। इस बात का सुनना था कि उसे अपनी सुनने की सलाहियत पे शक हुआ कि क्या कहा आपने? अली ने बेयकीनी से झिझकते हुए बोला, यही कि ज़िले अब दुनिया में रही, मर गई है। ये कहते ही जन्नत आंखों में नमी लिए नीचे गई की तरफ बढ़ गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अली पीछे की तरफ कदम लेते हुए बेयकीनी से बोला, भाई आपके जाने को 2 साल बाद ही आप ही चले गए थे, आपको फूफो ने नहीं बताया था? मुइज़ उसे दुखी नज़रों से देखकर बोला कि क्या मतलब? अली सदमे से बोला, आपको मैंने भी कॉल की थी, याद कर जब मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन आपने कहा था आज के बाद कॉल मत करना, तब आप ही से आपसे मिलना चाहती थी। माज उसे याद दिलाते हुए बोला, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अली चलाते हुए बोला, बताया था याद करे, तब आपने ही कहा था कि मैंने हर किसी का ठेका नहीं ले रखा। मास न जाने क्या बोल रहा था, लेकिन अली के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि ज़िले मर चुकी है। इसी आवाज़ को सुनते उसकी आंखें बंद हुई और वो गिर गया। यार ये लड़की ऐसे नहीं जाने वाली, मुझे लगता है हमें कुछ और करना होगा। मिनहा सबको देखते हुए बोली, यार ऐसा क्या करे, काम खराब करके देख लिया, बेइज्जत कर लिया, अब क्या करे? सबीन मिनहा से बोली, अरे मैंने सोच लिया है। नूर चमकती आंखों से बोली, क्या दोनों एक साथ बोली? अपने डिपार्टमेंट के साथ पर डिपार्टमेंट के असद का पता है ना? नूर सबको अजीब नज़रों से देखकर बोली, हाँ और मुझे लगता है वो ज़िले को पसंद करता है, और वैसे शक्ल से ही छिपड़ी लगता है। ज़बीन हंसते हुए बोली, हाँ तो ये कौन सा परी है, इसको इसके पीछे लगाते हैं और फिर निकलवाएंगे। मिन्हा और दोनों हाथ पे हाथ मारते हुए हंसी, जबकि ज़िले जो इन्हीं को काम कहने का आई थी नम आंखों से देखकर दिल में बोली, अल्लाह तेरे बंदे मुझे जिंदा देखना नहीं चाहते, मुझे अपने पास बुला ले प्लीज़। ये कहते ही वो मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। अली टिकता बस परेशानी ज़्यादा लेने की वजह से बेहोश हुआ था। अभी वो घर के बाहर ही रहा कि मोहल्ले की 2 औरतें आपस में बोली, एक वो लड़की थी जो अस्पताल के नाम पे न जाने कहाँ कहाँ जाती थी, मुश्किलों से उसकी जान छुटी थी, अब ये आ गया। हाँ बहन, कौन जवान लड़के को घर में रखता है जो बाहर रहकर आया हो? उनके घर के तो रिवाज ही अलग हैं। जो बोलते ही दोनों चली गईं।
माज ये सब क्या था? अली ने माज की तरफ नासमझी से देखा। कुछ नहीं भाई, बस इनका दिमाग खराब है। माज आंखों की नमी छुपाते हुए बोला। मुझे सच जानना है माज। अली माज के तासरात देखते हुए संजीदगी से बोला। भाई आप पहले आराम कर ले। माज नजर चुरा कर बोला। ये कहते ही अली अंदर की तरफ बढ़ गया। तुम्हें वाकई ही लगता है जॉब छोड़ना इसका हल है? मैनेजर जिले को देखकर अफसोस से बोली। जी मुझे यही लगता है। कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपके पास छोड़ने के अलावा कोई हल ही नहीं बचता। जिले नम आंखों से बोली। मुझे यकीन है ये फैसला तुमने बहुत सोच समझ कर किया होगा। मैनेजर जिले की नम आंखों को देखकर बोली। इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिले दिल ही दिल में बोली। ये लो एक्सपीरियंस लेटर। मैनेजर जिले को देते हुए बोले। थैंक यू मैम। जिले नमी से मुस्कुराई और ऑफिस से बाहर निकली। बहुत अच्छा वक्त रहा। 6 महीने गुजरने का पता ही नहीं चला। तुम एक अच्छी याद हो। ये कहते ही जिले मुल्तान की बस में बैठ गए। माँ जब तुम मुझे बताओगे मुझे नहीं पता कैसे चलेगा। अली मास को दुख से देखते हुए बोला। भाई मैं आपको नहीं बता सकता। मास बेबसी से बोला। बस ये समझ ले वो ठीक नहीं थी। मास नजर चाहते हुए बोला। मास तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे। तुम मेरी अभी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अली इंतहाई दुख से बोला। भाई आज मुझे आपकी आंखों में वही तकलीफ नजर आ रही है जो 6 सालों से जिले आपी की आंखों से झलकती है। न जाने क्यों। मास नम आंखों से पलट कर बोला। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, समझ जाए। मास ने कहते ही उसकी तरफ देखा। मास सरप्राइज अब अरीब मिजाज मास में से कोई बोलता। जिले खामोशी से मास के कमरे में आकर बोली। आप ही। मास ने बेयकीनी जिले को देखा और जिले की नजरें जो मास पे थी अचानक सामने की तरफ उठी और वही साकत हो गई। माँ ही। अली के मुंह से बेइख्तियार निकला। तो तुम? जिले के होंठों से अल्फाज टूट कर निकले और आंखों से आंसू बह निकले। 6 साल की हर अजियत याद आई। कैसी हो? अली ने खुद को संभालते हुए उसे देखा जिसकी हालत साफ जाहिर थी। वो बाल जो लंबे और घने थे अब छोटे से थे। रंगत जो सुर्ख हुआ करती थी अब पीली पड़ चुकी थी। आंखें वीरान और आंखों के नीचे काले हल्के। वो कहीं से जिले न लगी थी। जिंदा हो? तुम्हें हक नहीं है पूछने का। जिले नॉर्मल अंदाज से बोली। मास कैसे हो? जिले अली को नजरअंदाज करते हुए मास से बोली। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ कैसे चक्कर लगा लिया? मास ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए। अरे भाई सांस ले लो। मैं ठीक, बस तुम्हारी याद आई और मैं यहाँ। जिले मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन मुस्कुराहट ऐसी थी आंखों तक नहीं पहुँच रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आए बाहर चले। मास जिले के गिर्द बाजू करते हुए बोला। उसका अंदाज देखा जिले ने नम आंखों से उसे देखा। जिले के देखने पे मास ने पलके झपककर उसे तसल्ली दी और बाहर की तरफ बढ़ गए। माही तुमने अपना क्या हाल कर लिया? अली अपनी तेज होती धड़कनों पे हाथ रखकर बोला। यकदम उसे महसूस हुआ जैसे उसे सांस लेने में तंगी हो रही हो। आप ही आप ठीक है? मास ने कमरे में आते ही जिले को पानी दिया। मैं ठीक हूँ। जिले गहरे सांस लेते हुए बोली। आप ही आपकी दवाई कहाँ रखी है? मास परेशानी से बोला। मेरे पर्स में है। जिले पर्स की तरफ इशारा करते हुए बोली। अभी आया। मास कहते दवाई निकालने लगा। आप ही आपने इतनी गोलियां कब खाई? 4 पत्ते। मास जिले को तकलीफ से देखकर बोला। इन 6 महीनों में आपने अपनी इतनी दवाई इस्तेमाल की, इतनी तो आपने 5 सालों में नहीं की थी। मास फिक्रमंदी से बोला। क्या वहाँ भी आपको लोग तकलीफ देते थे? आप ही आप क्यों वहाँ रुकी रही? मास दुख और तकलीफ के मिले जुले तासुरात लिए बोला। मास मेरी इतनी फिक्र ना किया करो। जिले नम आंखों से गहरे सांस लेते हुए बोली। आप ही इन लोगों को छोड़ क्यों देती जो तकलीफ देते हैं? मास जिले के कदमों में बैठते हुए बोला। मास में एक चीज़ से मुझे नफरत है और वो है मेरी याददाश्त जो मुझे हर किस्म की तकलीफ देती है। जिले आंखों की नमी को छुपाते हुए बोली। आप ही भूल जाए नहीं तो ये अल्फाज आपको ख़त्म कर देंगे। मास जिले के हाथों को नरमी से थाम कर बोला। मास मास और जिले की अली की आवाज़ सुनकर चौंके और मास फौरन से उठ खड़ा हुआ। अली भाई आप। मास जल्दी से जिले के आगे खड़े होते बोला ताकि जिले की आंसू न देखे और जिले शर्मिंदा ना हो। हाँ मामी बुला रही है तुम्हें। अली मास के कंधे से पीछे देखने की कोशिश करते हुए बोला। अली भाई आज आप इस कमरे में आ गए, आइंदा आपको इस कमरे में न देखूं। मास अंगारे लिए आंखों से देखकर बोला। मास। अली उसकी हिम्मत पे सदमे से बोला। जी भाई चले मैं आ जाता हूँ। मास दो टोक अंदाज में बोलकर जिले की तरफ पलटा। अली मास का दो टोक अंदाज पे हैरानी और परेशानी पे मुड़ गया। मास ये क्या किया तुमने? जिले मास को देखकर बोली। मुझे अपनी पी से बढ़कर कोई नहीं। एहतराम में तब करता जब मेरी आपी उनकी वजह से हंसती और रोते देखकर मेरा उनको गंजा करने को दिल कर रहा था। अपनी बात बोलते हुए आखिर भी मास मजाकिया अंदाज में बोला और उसका अंदाज देखकर जिले का कहका गूंजा। अम्मी खाना तो मुझे आपी के साथ खाना है। मास आते ही बोला। अच्छा देती हूँ। जन्नत कहते ही उठी। लो अब मेहरानी का खाना अंदर बेड पे लगा करेगा। और कितना सर पे चढ़ाया तुम, पहले ही न जाने कहाँ से आई है। अरबाज जन्नत को गुस्से से बोला। आखिर में मास को देखकर तनसन बोला। अम्मी रोक ले, मैंने कुछ कहा तो बहुत आग लगनी है सबको। मास तबर से बोला और ये पहली बात था। सब हैरान रह गए। मास जन्नत ने मास को आंखें दिखाई और अंदर जाने का इशारा किया और मास अंदर की तरफ बढ़ गया। आप ही आज की रात आपके पास है। बात मास संजीदगी से बोला। किस लिए? जिले खाते हुए नासमझी से बोली। खुद को मजबूत करने के लिए। मास जिले को देखते हुए बोला। मास मेरी फिक्र ना करो, मैं बहुत मजबूत हूँ। इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके नहीं मरी, अब भी नहीं मरूंगी और तुम भी मेरे साथ हो। जिले लापरवाही से बोले। आप ऐसे बातें ना किया करें। मजबूत होने से मुराद है कि आज इतना रोना है रोले। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मुआज पुरसोच नजरों से बोला। मतलब किस तरह का फैसला? मास जिले ने चौंक कर मास को देखा। आप ही बहुत जल्द पता चल जाएगा। मास कहते ही बर्तन उठाने लगा जबकि जिले परेशानी से मास का सोचने लगी। अम्मी आपी के रिश्ते की बात करें। मास संजीदगी से जन्नत से बोला। कौन करेगा जिले से शादी? जन्नत परेशानी से बोले।
अम्मी आप ही से बात करें, अगर वो अली भाई से करना चाहती हैं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। माज जन्नत को देखते हुए पुरसोच नज़रों से बोला, माज ये कैसी बातें कर रही हो, हम लड़की वाले हैं, लड़के वालों की बात कैसे करें। जन्नत माज को समझाते हुए बोली, उसकी आप फिक्र ना करें, मैं भाई से बात कर लूँगा। माज मुतमईन अंदाज में बोला, मैं कोशिश करती हूँ। जन्नत सोचते हुए बोली, आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा। माज जन्नत को तसल्ली देते बाहर की तरफ बढ़ गया। जारी है।